The next thing is about the acceptance and the essentials of the acceptance. So पहले इसका meaning देख लेते हैं. When a person to whom a proposal is made signifies his assent, then the proposal is said to be accepted. Thus, acceptance means assenting to an offer made. Simply, जब कोई बंदा किसी को ऑफर करता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा बंदा, तो दिस signals of assent will be known as the acceptance. Important thing. An offer, when accepted, becomes a promise. So, offer plus acceptance is equal to a promise. A promise plus legal obligation or enforceable by law is equal to a contract. So, not all promises are obviously contracts, but promises having legal obligation or enforceable by law will be known as the contracts. So, what are the essential of the acceptance? Most of them are familiar with the essential of the offer. So absolute and unconditional communication, reasonable time, reasonable mode, awareness of the proposal before the loss of an offer, and negative confirmation. We'll go one by one. First of all, the absolute and unconditional. Any offer should be accepted without any condition. If any condition is imposed on the offer, it turns out to be a counter offer and it is not an acceptance. इसका सिंपल मतलब क्या है? जब आप बार्गेनिंग कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि कोई चीज है वो मैं सेल करना चाहता हूँ आपको 100 रुपीज की, तो मैंने ऑफर की लेट्स से अ कार और 100 रुपीज मैंने उसको आपको प्राइस बता दी, मैंने ऑफर कर दी, आपने कहा नहीं मैं इसको 90 रुपीज की खरीदना चाहता हूँ. एक्सेप्टेंस नहीं है. You can't say that somebody has accepted your offer because the offer was 100 rupees. The person said 90 rupees. So this kind of thing will be known as counter offer. This one, counter offer. So counter offers are not acceptances. Acceptance must be absolute and unconditional. कोई कंडीशन ना लगी हो, अगर उसने कहा 100 रुपीज की कार है और 4 दिन के अंदर पैसे दोगे एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी है. अगर आपने उसमें कोई कंडीशन लगाई तो इसका मतलब है कि आपने काउंटर ऑफर किया है, आपने एक्चुअली ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं की. सो काउंटर ऑफर. हाउ डू यू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस? The acceptance may be completed when it is communicated to the offerer. जब ऑफरर को कम्युनिकेट कर दी जाएगी तब वो ऑफर कंप्लीट होगी. An offer can be accepted by words spoken or written or through conduct of a person. ये इसके लिए भी वो 3 तरीके हैं, आप किसी भी 3 तरीके से इसको कर सकते हो. बट वील ऑल्सो टॉक अबाउट रीजनेबल मोड, उसमें जाके ये चीज जो है वो थोड़ी सी फर्क हो जाएगी. एंड फर्दर, a valid acceptance A valid acceptance is communicated either by the offeree himself or any person authorized to communicate the offer. Then, what about offers and acceptances made over telephone, telex, or fax, or you can say on WhatsApp or Skype or anything? So, they are considered as the
contracts or the offers made when you are face to face. इसमें एक कंडीशन के अलावा ये फेस टू फेस वाले ही तरह ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अ कॉन्ट्रैक्ट by telephone or fax is treated on the same principle as an oral agreement made between two parties when they are face to face with each other. In such cases, the contract will complete only when the acceptance is received by the proposer and not when it is transmitted to the acceptor. ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है बस इसमें. देखो, फेस टू फेस में तो आपको पता चल रहा होता है एक्सप्रेशंस या क्या है. सो व्हेन यू आर ऑन द फोन, फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ चीज ट्रांसमिट की और मैं समझ रहा हूं कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं. जैसे ही मैंने ऑफर की एक्सेप्टेंस आपको भेजी, यहाँ बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई और कनेक्शन में डिस्टॉर्शन आ गई. सो मैंने तो कह दिया है, अब तक पहुंची है कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऐसे नहीं होगी कि आपने कह दिया था तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है. एक्चुअली जब तक इस तक पहुंची नहीं है तब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी. एंड ऑब्वियसली इसीलिए फिर आप टेलीफोन पे अगले बंदे की असेंट भी मांग रहे होते हो कि आवाज आ गई है, सुन लिया है, सम जेस्चर्स आर रिक्वायर्ड. एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल मोड. तो पहले हम रीजनेबल टाइम के बारे में बात कर लेते हैं. रीजनेबल टाइम वैसे भी लॉ में बहुत दफा यूज होता है. ये कोर्ट्स बहुत ज्यादा इस एस्पेक्ट को देखती हैं. लेट्स से आपके पास, ये अदरवाइज इसको सिर्फ रीजनेबल टाइम को समझाने के लिए कह रहा हूँ. 22 ऑफ मार्च 2020 आपकी कोई रॉबरी होती है, कोई ऐसा केस होता है, कोई एक्सीडेंट होता है. हो गया, इंसिडेंट हो गया, ट्रू एक्सीडेंट, यस ठीक है, सब कुछ हुआ है. नाउ आप उधर टहलते रहते हैं, अपने काम शाम करते रहते हैं और किसी एक दिन आपको याद आता है, लेट्स से December 2020 एंड 23 December 2020. आपको ऐसे ख्याल आता है, आप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और आप कहते हैं जी मुझे जरा रिपोर्ट लिखवानी है कि ये मार्च में ना, पिछले साल या इसी साल मार्च में रॉबरी हुई थी हमारे घर में. These people are not going to take you seriously. Court is not going to take this seriously. Obviously सुनेंगे, वाकया भी सच्चा है सब कुछ, unless आपको इतनी देर तक उन्होंने कैद करके रखा हुआ था, फिर तो चलो ठीक है. बट देयर इज अ रीजनेबल टाइम फॉर एवरीथिंग. 22 मार्च को आपके घर रॉबरी अगर हुई है तो आप चले शाम को चले जाएं, 23 मार्च को चले जाएं, इवन इफ यू आर इन ट्रॉमा और समथिंग 24 मार्च को चले जाएं. बट यू कांट से आप 6 महीने बाद आपको याद आई तो आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं. सो लॉ इज नॉट गोइंग टू लुक एट दिस थिंग वेरी सीरियसली. नाउ इसी तरह अगर रीजनेबल टाइम की हम ऑफर में बात करें, जब ऑफर हुई थी तो आपने क्या रीजनेबल टाइम फॉलो किया था कि नहीं किया था, वो आपको देखना होता है. कि अगर तो आपने रीजनेबल टाइम में वो कंप्लेन कर दी थी, जिस तरह इधर हम कंप्लेन की बात कर रहे थे, तो ठीक थी. इसी तरह वैलिड एक्सेप्टेंस जो है वो भी ऑफर के रीजनेबल टाइम में आपने रिस्पॉन्स करना है. तो वहां टाइम स्पेसिफाइड है. टाइम स्पेसिफाइड है, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ है 23 अप्रैल 2020, देन इस तक ही आपके पास टाइम है. लेकिन अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो फिर एटलीस्ट आपके पास रीजनेबल टाइम में होना चाहिए. तो आज से 15 साल पहले किसी ने कोई ऑफर की थी, आज आप उसको एक्सेप्ट करते हो जाके, तो वो रीजनेबल टाइम तो नहीं है. सो रीजनेबल टाइम पे एक्सेप्टेंस होगी, वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनेबल मोड. बहुत दफा हम रीजनेबल मोड से चीजों को नहीं करते तो वो चीजें जो हैं वो लीगल नहीं रहती. फॉर एग्जांपल, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द प्रपोजल.
If a proposal prescribes a manner in which offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, it will not be considered as a valid acceptance. मसलन उन्होंने आपको कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें थ्रू सरफेस मेल। थ्रू सरफेस मेल जब आपने भिजवाने हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको पोस्ट करना है, किसी कोरियर सर्विस के थ्रू हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। आप क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन उसको सबमिट करा देते हैं। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट करा दिया तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से रीजनेबल मोड नहीं यूज किया। इसी तरह अगर आपको जॉब की ऑफर होती है आफ्टर यू वेंट थ्रू एन इंटरव्यू एंड टेस्ट और वो कहते हैं कि इफ यू एक्सेप्ट दिस जॉब प्लीज कम टू द ऑफिस एंड साइन इट, आप उसको ईमेल लिख देते हैं। तो ईमेल इज नॉट एक्सेप्टेंस, यू नीड टू गो टू द ऑफिस एंड एक्सेप्ट इट। यस, अगर उन्होंने आपको ये ऑप्शन दी है कि आप ईमेल कर दें, टेलीफोन कर दें या ऑफिस आ जाए, then all three modes are acceptable. But otherwise, if they have prescribed a specific mode, तो आपको specific mode से ही जाना पड़ेगा। Another very interesting thing, acceptance cannot be made before the proposal or without the awareness of the proposal. An acceptor must be aware of the proposal at the time of the acceptance of the proposal. इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको रियल केस सुनाता हूँ, बहुत पुराना बट रियल केस। एक कोई आदमी था, उसका बच्चा सुबह 8 बजे 8 AM पे गुम हो गया। 9 o'clock उसका एक सर्वेंट, एंड दिस इज अ केस ऑफ 19 आई थिंक 57, उसका सर्वेंट एक 9 o'clock उस बच्चे को ढूंढने के लिए चला गया। तो मैं ढूंढ के लेके आता हूँ, कोई मसला नहीं। 9:30 पे ये आदमी जो बहुत परेशान था, इसने कहा कि जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 100 रुपीज इनाम दूंगा। 10:30 पे सपोज कर लें कि वो जो बाबा जी जो इधर गए थे इसको ढूंढने, वो अब वापस आ जाते हैं और वापस आके बच्चे को ढूंढ के ले आते हैं। वापस आके उनको पता चलता है कि एक 100 रुपया अनाउंस हुआ है फॉर दी एज अ प्राइज। तो बाबा जी उससे डिमांड करते हैं बंदे से कि मुझे 100 रुपया दें बिकॉज आपने अनाउंस किया। वो नहीं पैसे देता और कोर्ट में केस चला जाता है। कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इनको, इसके सर्वेंट को पैसे नहीं मिल सकते। रीजन, बिकॉज जब ये बच्चे को ढूंढने गया है तो इट वाज 9 o'clock, ऑफर वाज मेड एट 9:30। सो इसने जो एक्शन किया है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑफर, इसने वॉलंटरी एक्शन किया है। सो ही डज नॉट deserve it as per the contract, law of contract। अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज अगर आप खुशी से उसको दे देता है पैसे तो ठीक है, बट बिकॉज ही वाज अनअवेयर ऑफ द प्रपोजल, सो आपको अवेयरनेस ऑफ द प्रपोजल होगी तो आप एक्सेप्टेंस करेंगे तो ही एक्सेप्टेंस होती है, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं होती। एंड बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम or before the lapse of an offer, the acceptance must be given before the offer lapses or is withdrawn. We'll talk about this. What do we mean by lapses and withdrawn? Simply, अगर उसमें लिखा हुआ है कि 22 मार्च 2021 तक एक ऑफर वैलिड है, इस डेट के बाद ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगी। बाद अगर आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगेन, जो ऑफर का भी वैलिड होने की एक निशानी थी, नेगेटिव कंफर्मेशन में आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, आप ऑफर में कोई ऐसे वर्ड्स एम्बेड कर देते हैं कि
अगर आपने 3 दिन तक ऑफर एक्सेप्ट ना की तो ये समझा जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर ली है। सो इस तरह के वर्ड्स अगर उसमें हो तो दे आर नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, वो सिंपली नेगेटिव कंफर्मेशन है एंड उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एग्जाम्पल इसमें हम देखें, अ प्रपोजल इट इज नॉट एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट। आप उसमें ऐड करते हैं ऑफर में कि अगर 3 मिनट तक तुम ना बोले तो मैं समझूंगा कि एक्सेप्टेड है। सो साइलेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस। और you can't say if it is not accepted within a specified time, then it will presume to have been accepted. You can't put these words in the offer and then assume कि वो offer जो है वो accept हो गई है. So these are all the essentials of the acceptance.